Welcome to the podcast with Gaurav Makkar. Today we have a great personality among us, Mrs. Kajal Dhayal, the leader of Krishna Devi Gurukul International School. Welcome, ma'am. Thank you so much, Gaurav. I am so pleased and happy to be here. Thanks for the invitation. First of all, ma'am, I just want to know, how are you feeling over here? I am feeling very nice coming to Gaurav Coaching Center, and obviously, I am so happy that you have started a new venture with the vlogging thing, and you felt that I am worthy enough to share some views. So I'm so happy to be here. Ma'am, I just told you for few things that you are having a deal with the parents and teachers with a long time, and right now I just want to know like your journey from Kajal to Kajal Dhayal or Advocate Kajal Dhayal if we want to know. Okay. So from where it started, you have started your journey as a teacher or as a lawyer, ma'am? I started my journey as a teacher when I was a student in Punjab University. Used to live in a hostel. I started my journey as a tuition teacher, to be precise. And, there was no such plan, but, teaching came to me, like teaching chose me. I did not choose teaching initially because when I was a student, as I told you, in my hostel, my roommate uh, had a very good connection with one of the faculties over there. Like she was doing PhD under Saran, ma'am there. So ma'am had two very young children, and she was, busy with a lot many things, so she was not able to teach them. So she asked my roommate that, if you can teach my children as a tutor. But since my roommate was also doing PhD, so she had a lot of work, she also could not cater to that need. Then she asked me, Kajal, are you interested in teaching? I said, okay, I've never done it, but I can give it a try, because after my classes, like they used to be from 8 a.m. in the morning, and by the noon I was completely free. So I said, okay, I'm free in the evening, let's give it a try. I can teach if the children can come to me, because I used to be a very lazy person at that time. So I'm like, I cannot travel and all, but if the children can come to me, and I can teach them at hostel reception area, so will that be fine? They agreed, and I started my journey as a teacher from there. And I realized that, I'm actually liking it. बच्चों के एग्जाम होते थे तो आई यूज टू लाइक, ओ मेरे बच्चों के एग्जाम है, मेरे बच्चों के एग्जाम है, मेरे खुद के ही एग्जाम फील होता था मुझे. So yes, it all started from there. And I was studying law at that time, and I always wanted to be a lawyer because my father is a lawyer, and I had this dream that I also will be joining either him, or maybe I will do my own practice as a lawyer. And I did practice for a while, but then I realized that, I have started loving the profession of teaching, and maybe I'm meant for this. So, and moreover, of course, as the journey changed from Kajal Kaswa to Kajal Dhayal when I got married, and I married to a person who has his own school. So, yes, all the circumstances as well as my own interest, they all got like in a sync, collaborated, and then I decided that okay, I'll quit practicing law and I will be full time teacher. मैम Yeah. अगर बात करें फ्रॉम टीचर टू लीडर की जर्नी में बहुत Mhm. सारे चेंजेस आए होंगे तो बीइंग अ लीडर आज आपको क्या क्या मतलब हम कह सकते हैं हार्डेस्ट स्टेप फेस करने पड़ रहे हैं See, everything in life, or every profession for that matter, has its own challenges. Teaching में अपने challenges हैं. उसमें, you need to give result to your child, to whosoever you are teaching. आपके बच्चे के एग्जाम है, आपको लग रहा होता है एज अ टीचर आपके खुद के ही जी हाँ एग्जाम है. सो ऑल दीज थिंग्स, एंड देन you feel like motherly, or if there is a male teacher, fatherly towards all these children, है ना. So there are a lot many things, but being leader of a team of educationists, it is kind of different challenge, of course. बहुत सी चीज़ें इसमें आसान है क्योंकि आपको डील करना है विद एजुकेटेड पीपल, लाइक क्योंकि आपको टीचर से डील करना है. एवरी वन इज, अ टीचर, एन एजुकेटेड पर्सन, अ पैशनेट वन. सो आपको थोड़ा सा दिशा दिखानी है, एंड दे ऑल कैन डू दैट बिकॉज दे आर टीचर्स फॉर अ रीजन.
right? But sometimes, dealing with children, when you are a teacher only, they see you in a different manner. And when you are a leader, even if you want to, make that atmosphere for the children that they can directly come to talk to you about, their educational need, their developmental needs. But some of them do come, and the other ones, they share things with their teachers, but they just don't directly come to me. Sometimes I feel there is this challenge in making that environment work. Ma'am, on the other hand, we can also say the same thing, that being a leader, we cannot make happy all. Yes, true that. See, not being a leader, being in any profession for that matter, being a teacher, being a leader, being, in any field, you can never ever satisfy everyone. Even children cannot satisfy everyone, and we are not actually understanding it. That's why maybe we actually required to talk about positive parenting today. So when you gave me this invitation that we are going to talk about, needs of children for their development and parenting challenges and everything, so I thought that yes, it is amazing, we should be talking about it. Ma'am, as we all know that teachers are considered the second parents of the child. So, do you believe in the statement? Yes, of course, we definitely are second parents to the child, but the challenge is the child, and especially the parents should accept it that we are, right? So sometimes we have to be like very Rigid. sweet to the child. At the same time, yes, sometimes we have to be rigid, and डांटना भी पड़ता है बच्चों को. तो जहां हम उन बच्चों को प्यार दे रहे होते तब तो वो हमें एज अ पॉजिटिव पेरेंट लेकर चल रहे होते, बट अगर हम बात करें कहीं पर ऐसे स्टेप्स भी आते हैं जहां पर वो बदलाव आते हैं बच्चों में, चाहे वो सिचुएशन को लेकर, और आज बच्चों में बहुत सारे ड्रास्टिक चेंजेस आ रहे हैं, तो इसमें एक रोल पेरेंटिंग का भी रहेगा? Yes, obviously, parenting has a big role to play. देखो, जो हम कहते हैं कि जमाना इतना बदल चुका है, वो सच है कि पहले क्या था कि पूरे एक डिकेड के बाद एक जनरेशन गैप आता था, बट अभी आई थिंक हर 2-3 साल में एक जनरेशन बदल रही है, जनरेशन गैप इतना क्विकली आ रहा है. सो पेरेंट्स नीड टू अंडरस्टैंड दैट the psychology of the child, and also the teachers need to understand for that matter, especially the teenagers, because teenagers के अपने खुद के भी challenges हैं. They have this peer pressure, they have many changes, as we all know. So they need to be heard, they need to be accepted, and also they need to be guided in the right direction. देखो, बच्चा बहुत छोटा है, उसके गलत दिशा में भटक जाने के चांसेस बहुत कम हैं. बच्चा बहुत बड़ा हो चुका है, तो वो बच्चा नहीं रहा है, वो अडल्ट हो चुका है. अब वो सही चलेगा या गलत चलेगा, देयर इज अ चॉइस, बट दैट पर्सन इज एन अडल्ट नाउ. तो उसको पता है क्या सही है और क्या गलत है. तो टीचर्स का और पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा रोल रह नहीं जाता है, क्योंकि अभी उसको क्लैरिटी है कि ये सही है और ये गलत है, कहीं भी जा सकता है. बट टीनेजर्स, उनको ये लग रहा है कि हम बहुत बड़े हो गए हैं, हमें तो सब पता है, हम अपने डिसीजंस ले सकते हैं, लेकिन वो इतने बड़े नहीं हुए हैं. सो वी नीड टू गाइड देम टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन. एक अभी मैम मैंने एक रिसेंट एक सेमिनार अटेंड करा, तो उसमें एक एजुकेटर यही बात बोल रही थी कि लाइक आप पीआरटी टीचर्स के पास तो कच्चे घड़े होते हैं, आप उन्हें मोल्ड कर सकते हो, बट हम इन पक्के घड़ों का क्या करें? देखो, कोई भी बच्चा, आई वुडंट से दे कैन नॉट चेंज. आई थिंक किसी बच्चे को अगर वो गलत दिशा में भी है, उसको सही दिशा में लाना है, वो बिल्कुल आ सकता है. लेकिन पहले हमें बच्चे की साइकोलॉजी को समझना होगा, दैट व्हाई दिस चाइल्ड इज सो एरोगेंट, व्हाट हैपेंड टू दिस चाइल्ड, देयर मस्ट बी अ बैक स्टोरी, एंड मे बी दैट चाइल्ड इज ऑल्सो फीलिंग कि हर कोई मुझे ही जज कर रहा है. Either my parents or my classmates or the society, everyone is just judging me for not being able to perform as per their expectations. बहुत सी चीज़ें हैं. अगर हम इसमें बात करें, बच्चा एरोगेंट क्यों हो जाता है? पेरेंट्स और टीचर्स कई बार बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस क्रिएट कर देते हैं, या पीयर ग्रुप एक्सपेक्टेशंस क्रिएट कर देता है, पढ़ाई से रिलेटेड, ओवरऑल बिहेवियर से रिलेटेड, या डेवलपमेंटल गोल से भी रिलेटेड. और बच्चा अगर उस लेवल तक, उस स्तर तक नहीं पहुंच पा रहा है, सो दैट चाइल्ड फील्स
or maybe is made to feel in that way that I am lacking somewhere. तो अचानक से उसकी साइकोलॉजी पे ये इम्पैक्ट पड़ता है कि वो प्रूव करना चाहता है कि नहीं नहीं मैं गलत नहीं हूँ, और वो प्रूव नहीं कर पा रहा, तो फिर एक इमोशन, एनर्जी कैन नेवर बी destroyed, it can be changing in forms. Just like हम साइंस में पढ़ते हैं, हीट कैन एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, नो एनर्जी कैन बी डिस्ट्रॉयड और क्रिएटेड. सिमिलरली बच्चे का भी है. अब उसकी ये जो गिल्ट वाली फीलिंग है जो टीचर्स भी क्रिएट कर देते हैं, वी डोंट इवन रियलाइज, समटाइम्स वी यूज सच लैंग्वेज, ओ दिस वाज नॉट एक्सपेक्टेड ऑफ यू स्पेशली, वो फिर वो स्पेशल रिमार्क पेरेंट्स भी अपनी अधूरी अनफुलफिल्ड इच्छाओं को अपने बच्चों पे थोप देते हैं. ठीक है, सो इट इज जस्ट प्लेस्ड ओवर देयर शोल्डर्स. अगर वो उसको अप टू द मार्क पूरा नहीं कर पा रहे हैं, दे आर इन दिस गिल्ट इमोशन, और फिर वो गिल्ट इमोशन धीरे धीरे एंगर इमोशन, एरोगेंस में कन्वर्ट हो जाता है. सो ऑफ कोर्स यू रियलाइज देयर इज अ रीजन, you deal with the child accordingly, and we can show the right direction. I agree with the statement of ma'am. Ma'am just want to say that हमें बच्चों की साइकोलॉजी को समझना होगा. Being a parent, being a teacher और being a leader, आप जिस भी जॉब पर हो, आप बच्चों की नीड्स को समझो और देन यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंगली. नेक्स्ट मैम आपसे जानना चाहूँगा, जैसे आजकल के बच्चे जो रोल मॉडल्स अपने हीरो हीरोइंस को मानते हैं, तो अगर हम जानना चाहें आपके लाइफ के रोल मॉडल्स कौन रहते हैं? मेरे लाइफ के रोल मॉडल हैं सबसे पहले मेरे पेरेंट्स ऑफ कोर्स, और आई थिंक हर किसी के होने चाहिए. एंड इफ वी टॉक अबाउट हीरोज, एंड आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट, बहुत समय से फ्रॉम माय स्कूल डेज माय आइडियल हैज बीन महात्मा गांधी, बिकॉज वंस I, along with my father, I was watching a movie, and then there are many critical aspects about Gandhi ji that we come to hear from many people. Then I discussed with my father. He is also like very inspired by Gandhi ji. Then I asked him, okay, Satya and Ahimsa, does they really work? Then there was this quotation, I don't know who is the writer of this quotation, but very beautiful, that सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता. So my father told me this, and I was like, okay, yes. But in my life, when I actually implemented it multiple times, I realized that initially sometimes being truthful puts you in difficult situations, in troubles, but ultimately your personality grows and you never feel like losing. You always either win or learn from the situation, but you have to be truthful. वो बात जो हमने सुनी है कि एक झूठ को छुपाने के लिए फिर कई बोलने पड़ते हैं, तो exactly. एक झूठ को छुपाने के लिए डेफिनेटली बहुत सारे झूठ बोलने पड़ते हैं, एंड सम पीपल फॉल इन दैट ट्रबल, दे जस्ट फॉरगेट आल्सो कि मैंने किस किस को क्या क्या बोल दिया. सो इट क्रिएट्स लाइक more problem. So why not to speak the truth? If it is good, okay. If it is wrong also, then the wrong settle down there where you accept it. मैम हम जैसा कि हमारा मोटिव यही था, आज हमने पेरेंटिंग के ऊपर डिस्कस करना था. अगर बात करें तो पेरेंट्स आज बच्चों की कौन कौन सी नीड्स को फुलफिल कर रहे हैं और कहाँ पर वो लैक कर रहे हैं? एक तो हम इस बात को जर्नलाइज नहीं कर सकते हैं गौरव, क्योंकि कुछ पेरेंट्स कुछ पर्टिकुलर नीड्स को प्रोवाइड कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते, बट देयर आर सम अदर नीड्स उनको मे बी द फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रुप ऑफ पेरेंट, वो केटर नहीं कर पा रहे हैं, बट द नेक्स्ट इज केटरिंग टू दैट. बट in you cannot generalize as such, but yes, nowadays I have observed this thing in many parents, that they feel that if they are providing the school's fees or the tuition's fees, then all their work towards the education of the child is over. Duty must completed. Yes, but I think teaching as well as overall personality development of the child, and you yourself being an educator will agree to it, I think that it is a collective responsibility, because it is through the way of mutual cooperation and mutual respect of the parent towards the teacher and the teacher towards the parents, and they both catering to the educational and overall development needs of the child, तो बच्चा ग्रो कर पाता है. खास करके आज के एटमॉस्फेयर में, फॉर एग्जाम्पल आई विल क्विकली यूज एन एग्जाम्पल.
many parents complained about this thing that हमारा बच्चा बहुत ज़्यादा जी मोबाइल यूज़ करता है, लैपटॉप यूज़ करता है. So one of the parents, and he just came to me and he discussed about it, and that too very angrily once, that okay, my child has started using a lot of mobile phone, what is this going on? Then I said ki sir, I can promise you this thing, that we are not providing any child any phone in the school. So who is providing that mobile phone, or for that matter laptop? Parent. सो देर इज अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी. हम बच्चे को गाइड कर सकते हैं एजुकेशन के लिए ज़्यादा, और संस्कारों के लिए भी कर सकते हैं, बट एज टीचर्स वी गेट लिमिटेड टाइम विद द चाइल्ड. लेट्स बी प्रैक्टिकल, लेट्स बी रियलिस्टिक. दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी. घर में वो क्या कर रहा है, मोबाइल यूज़ कर रहा है या अपना होमवर्क कंप्लीट कर रहा है, नहीं कर रहा है, किस संगति में है. सो ये सारी चीज़ें स्कूल में रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टीचर्स की, स्कूल की, और घर में रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पेरेंट की. और आजकल जो एटमॉस्फेयर हो चुका है, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि पेरेंट बच्चे को समझें, उसके साथ फ्रेंडली भी हो और ओवर फ्रेंडली भी नहीं हो. बहुत से पेरेंट्स को ये लगता है कि हम फ्रेंड्स ही बन जाएं. आई थिंक पेरेंट्स शुड बी फ्रेंडली, but they shouldn't be completely friends. There should be a thin line difference between that. There's a gap between. There should always be a gap. बच्चे को पेरेंट्स के साथ फ्रेंडलीनेस इतनी होनी चाहिए कि वो अपनी हर बात खुल के अपने पेरेंट्स के साथ कर सकता है, लेकिन फ्रेंड्स फ्रेंड्स होने चाहिए और पेरेंट्स पेरेंट्स होने चाहिए. एक वो जो रिस्पेक्ट, और टीचर टीचर होना चाहिए. वो जो एक रिस्पेक्ट के दायरे हैं, अगर उसको क्रॉस नहीं किया जाता तो आउट ऑफ रिस्पेक्ट भी आप अपने पेरेंट की रिस्पेक्ट, अपने टीचर की रिस्पेक्ट की वजह से भी आप अपनी बाउंड्रीज में रहते हो. तो ये भी ज़रूरी है. देयर शुड बी अ बैलेंस. सोसाइटी आई एक्चुअली फील दैट सोसाइटी एक बैलेंस को लॉस्ट कर रही है. टीचर या तो बहुत स्ट्रिक्ट, सेम वे पेरेंट या तो बहुत स्ट्रिक्ट कि बच्चा उसके सामने कुछ बोल ही नहीं पा रहा है, या फिर बहुत ओवर फ्रेंडली कि बच्चा अपनी बाउंड्रीज को बिल्कुल भूल गया है. वो अगर बच्चा टीचर को यार ही बोल देगा, तो फिर फिर वो वो नहीं नहीं पढ़ पढ़ सकता उस सकता. टीचर से. देयर शुड बी दैट गैप. गैप between. द मैम हैज राइटली सेड कि कहीं पर भी अगर पेरेंट और बच्चे में बहुत ज़्यादा वाइड गैप है तो भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. अगर वो ओवर पोजेसिव है अपने बच्चे को लेकर, लाइक उसकी हर एक नीड के लिए वो बहुत परेशान हो जाते हैं, या ओवर पैम्पर्ड है, तब भी वो बच्चे को स्पॉइल ही कर रहे हैं मैम कहीं पर बिल्कुल. भी. और आज अगर मैं बात करूँ तो मैम 40 to 50% पेरेंट्स हम ये कंसिडरेट कर सकते हैं कि वो अपने बच्चे को ओवर पैम्पर कर रहे हैं. Yes, because providing everything is very easy, but not providing everything and making the child understand that this thing is not right for you at this age, that is why we are not providing. And in fact, even if parents can afford, but they should say to the child कि ये चीज़ हम आपको इसलिए नहीं दिलाएंगे because we cannot afford this right now. बच्चे को थोड़ा सा ना सुनने की हमेशा से आदत आदत होनी होनी चाहिए. चाहिए. It is very important. ये बात मैम बिल्कुल आपकी एग्री करता हूँ मैं. आज वाले बच्चों में मैम पेशेंस की कमी इसी वजह से है क्योंकि उनके पेरेंट्स ने उन्हें कभी ना कहा ही नहीं. हाँ, सब मिलता जाता है, फिर इंसान को सब कुछ चाहिए ही चाहिए, बाय हुक और क्रुक. बाय जब हुक और उसको क्रुक. नो सुनने की आदत होती है तो इट इज गुड. देयर शुड बी एक्सेप्टेंस ऑफ नो, और वो घर से शुरू होती है. अगर मैम बात करें हमारे बचपन की, लाइक हमारे पेरेंट्स ने भी हमें चीजें इतनी इजीली प्रोवाइड नहीं करी थी. जैसा अगर हम बात करें नेवर तो नेवर, ऑलवेज वी हैड टू अर्न इट. लाइक अगर मैंने कोई चीज की रिक्वेस्ट करी है तो पहले तो मुझे 2 बार सोचना पड़ेगा कि ये मुझे ट्रू मिलेगी दैट, ट्रू या नहीं दैट. मिलेगी. मैम लास्ट आपके थ्रू हम एक मैसेज देना चाहेंगे टू द पेरेंट्स कि वो अपनी जो भी कमियां हैं, जैसा कि अभी आपने वो सजेस्ट करा कि कुछ नीड्स को वो कैटर करें. अगर हम बात करें कि कुछ बच्चे ऐसे हैं लाइक जो लीस्ट स्कोरर है मैम, एवरेज को हर कोई कंसिडरेट कर देता है और जो टॉपर्स हैं उनको भी कंसिडरेट कर देता है. बात वहाँ आती है, मुझे अभी रिसेंट एक पेरेंट मिलकर गई तो उनका सिर्फ एक यही था कि मैं जब भी जाती हूँ ना तो मुझे हर रिपोर्ट कार्ड में ना मेरे बच्चे का C ग्रेड लिखा हुआ मिलता है, और मुझे ना एक एम्बैरेसमेंट फील होती है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ या मुझे ही ऐसा बच्चा क्यों मिला. तो वो फेलियर्स एक्सेप्ट करना पेरेंट ही नहीं कर पा रहा तो बच्चा कैसे करेगा मैम. ओह, दिस इज सच अ ग्रॉस लाइन. अगर किसी दिन बच्चा ये कह दे कि मुझे ही ऐसे पेरेंट क्यों मिले,
जो मुझे सो एंड सो चीज प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, या फिर जो मेरे इमोशंस को नहीं समझ पा रहे, पेरेंट विल बी सो मच हर्ट कि हमने बच्चा पैदा किया, हमने बच्चे को पाला पोसा, उसको सब कुछ दिया, और अब वो आज ये कह रहा है मुझे ही ऐसे पेरेंट्स क्यों मिले। तो सिमिलरली हम बच्चे को ये कैसे कह सकते हैं? हर एक बच्चा पढ़ाई में अच्छा हो ये जरूरी तो नहीं। कोई सचिन तेंदुलकर भी बनेगा। सचिन तेंदुलकर अगर पढ़ते ही रहते तो इतने तो महान क्रिकेटर कैसे बनते? नहीं बन पाते ना। कोई क्रिकेटर बनेगा, कोई इन डिफरेंट स्पोर्ट्स कोई अच्छा होगा, कोई शायद एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अच्छा हो और दूसरे पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अच्छा नहीं हो। दिस ऑलवेज हैपन। लाइक इफ आई टॉक अबाउट मी, I have been a studious child since my school time, but I never liked maths. I actually used to cry when there was maths exam. I used to feel that okay, I'm not going to score that well in maths, because how far I'm trying, I'm not able to excel in the subject, and it will lead to decrease in my percentage, and then it will impact my overall performance. But later on, like with the positive atmosphere created, I realized that it's okay to be good in one thing and not be good in the other thing. other thing. This is the balance of life. And सब पेरेंट्स को ये समझना होगा, एंड अपनी एक बहुत बड़ी बात है, शायद कुछ लोगों को अच्छी लगेगी, शायद नहीं लगेगी, बट आई बिलीव इन ऑनेस्टली सेइंग दिस कि बहुत से पेरेंट्स अपनी अधूरी इच्छाओं को अपने बच्चों पर थोप देते हैं। जैसे कि बहुत से पेरेंट्स कहते हैं जी मैं तो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा नहीं था पढ़ाई में, पर मैं चाहता हूँ मेरा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट बने, बहुत वो इंग्लिश बोले, बहुत कुछ, क्योंकि जी हम तो सब कुछ कर रहे हैं, हम तो उसकी फीस भी भर रहे हैं, हम तो ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, तो बच्चा भी तो अपनी तरफ से मेहनत कर रहा है। अगर वो कर पा रहा है बहुत अच्छा, लेट्स अप्रिशिएट दिस चाइल्ड। थोड़ा कम अच्छा कर पा रहा है बट वो बिहेवियर में बहुत अच्छा है, उसके कोई बिहेवियरल इश्यूज नहीं हैं, तो लेट्स सपोर्ट दैट चाइल्ड ऑल्सो, क्योंकि हो सकता है उसका इंटरेस्ट आर्ट में हो, वो बहुत अच्छा आर्टिस्ट बन सकता है, डांसर बन सकता है, म्यूजिशियन बन सकता है, कुछ भी बन तो सकता है। मैम हम एक तरह से ये बात कह सकते हैं कि बस बच्चे की एकेडमिकल ग्रोथ को ना देखते हुए उसके अंदर अंदर हिडन टैलेंट जो है उसको ढूंढना माँ बाप की जरूरत है। बिल्कुल है। और जो बच्चे को हम एक प्यार भरा, एक एक्सेप्टेंस भरा माहौल प्रोवाइड करेंगे, तो बच्चा हर तरीके से ग्रो करेगा। बच्चा भी अपनी तरफ से कोशिश करता है। कौन बच्चा चाहता है मैं फेल हो जाऊं या मेरी सी ग्रेड आए? स्टार्टिंग में कोई बच्चा नहीं चाहता, बट फिर क्या होता है, इनफैक्ट पेरेंट्स के साथ साथ, बिकॉज हम पेरेंट्स से पे ज्यादा बात कर रहे हैं, पॉजिटिव पेरेंटिंग हमने आज का टॉपिक चूज किया, बट टीचर्स ऑल्सो, अगर हम एक बच्चे को एक फ्रेम में डाल देंगे, ये तो ऐसा ही है, ये तो इतना ही कर पाता है, तो चाइल्ड विल एक्सेप्ट इट कि मैं इतना ही कर पाता हूँ और सबने ये एक्सेप्ट कर लिया है, सो मैं क्यों इतनी मेहनत करूं अलग वो से? चेंज ही नहीं होगा। हाँ, वो करेगा ही नहीं, उसको लगता है अब तो सबने डिक्लेयर ही कर दिया कि मैं ऐसा ही हूँ। हाँ, कोई पढ़ाई नहीं, कोई बच्चा अगर शरारती है, उसने एक दो बार कुछ शरारत करी, हम अगर एज टीचर्स या पेरेंट्स से कहने लगे अच्छा पक्का ये तो इन्वॉल्व होगा ही होगा, इफ वन ग्रुप हैज क्रिएटेड अ ट्रबल दिस पर्सन मस्ट बी देयर, बिकॉज ये बच्चा ऐसा ही है, फिर वो बच्चा धीरे धीरे वैसा ही हो जाएगा, क्योंकि उसको लगेगा जब मैं डिक्लेयर ही हो चुका हूँ तो लेट्स जस्ट डू इट, ओके, व्हाई टू whom I will prove it now that I am a good person. So वी जस्ट वांट टू से बाय दिस लाइन, मैम ने जैसा बोला कि डोंट टैग योर चाइल्ड, कि आप अपने exactly, बच्चे this को is the कोई right भी term, tagging is wrong. टैगिंग इज रॉन्ग, कि आप उसे कुछ भी टैग मत कीजिए, नालायक है या जो भी हम वर्ड्स यूज करते हैं इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स, तो उन वर्ड्स को बीइंग अ टीचर, बीइंग अ लीडर, बीइंग अ पेरेंट, हमारी ड्यूटी बनती है कि हम अपने बच्चे को पॉजिटिवली मोटिवेट करें और उसकी जो भी नीड्स है, जैसा कि मैम ने बोला कि हम जनरल सभी बात नहीं करेंगे, हर पेरेंट्स आज अपने बच्चे की इकोनॉमिकल, फिजिकल, बाकी नीड्स को पूरा कर रहा है, बट इमोशनल नीड्स कहीं पर वो लैक कर रही हैं, यानी वो कनेक्ट नहीं कर पा रहा अपने बच्चे से, राइट टाइम पर नहीं कर पा रहा। अगर मैं कहूँ तो मैम पेरेंट्स बच्चे की जो कमजोरियां हैं बाद में जान जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना, वो अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। बिल्कुल, exactly. And I would also like to add one thing, because I felt very bad listening to this particular statement, कि मुझे embarrassment होती है जब मेरे बच्चे के कम मार्क्स आते हैं। बच्चे के मार्क्स उसकी पर्सनालिटी का, उसकी पूरी पर्सनालिटी उसके मार्क्स नहीं है, उसकी पर्सनालिटी का एक हिस्सा है।
अगर किसी के पेरेंट हाँ कम अफोर्ड कर सकते हैं एज कम्पेयर टू उसके फ्रेंड्स के पेरेंट्स, और अगर वो बच्चा कहेगा कि मुझे तो एम्बैरसमेंट होती है, मेरी मदर कम अच्छे से ड्रेस्ड है या मेरे फादर कम अच्छे से ड्रेस्ड है या हमारे पास कम पैसे हैं, मेरे फ्रेंड के पास ज्यादा पैसे हैं उनके पेरेंट्स के पास, तो पेरेंट्स को कैसा लगेगा, हाउ माई चाइल्ड कैन बी कंपेयरिंग। वो रिवर्स सो कॉम्प्लीमेंटिंग स्टार्ट हो जाएगा। एग्जैक्टली, तो फिर वही हम बच्चे से कैसे कह सकते हैं? हम्म? और बच्चा किसी की प्रॉपर्टी नहीं है जस्ट बिकॉज पेरेंट्स ने समटाइम्स पेरेंट्स स्टार्ट इम्पोजिंग इट लाइक दिस ऑल्सो दैट बेटा हम तो आपको सब प्रोवाइड कर रहे हैं, हमें रिटर्न में रिस्पेक्ट चाहिए, हमें रिटर्न में ये चीज चाहिए, हमारे अकॉर्डिंग ही चलो, हमारे अकॉर्डिंग पहनो, हमारे अकॉर्डिंग चलो, हमारे अकॉर्डिंग फ्रेंड्स बनाओ, हमारे अकॉर्डिंग मार्क्स लाओ, हमारे अकॉर्डिंग हॉबीज भी डेवलप करो, because my friend's child is developing this habit, even if you like skating or swimming or not, but you have to do it because it is a status symbol now. So that child is not your property just because you have given birth to the child. We need to understand that's a separate individual having a separate personality. Like we can consider it like a plant. It's not in our hand that how it will grow. Exactly. The seeds task is over when the plant has started growing into a sapling. Now the nature environment is to be provided, of course. माली अगर एक अच्छा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करेगा तो वो पौधा पूरा अच्छे से खिलेगा। टीचर और पेरेंट का उतना ही काम है, पौधे ने तो खुद खिलना है। हाँ, लेट दैट पौधा, लेट दैट चाइल्ड bloom to full potential. Let's just provide a good environment. वो हमारा स्कूल भी होता है, वो हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं, टीचर्स, पेरेंट्स, एवरीवन, जस्ट द एनवायरनमेंट वर्क। नॉट वी कैन गो टू द पौधा एंड उसको खींचो कि बढ़ जाओ बढ़ जाओ बढ़ जाओ, वो जड़ से ही उखड़ जाएगा। दैट इज देयर। The ma'am has rightly said, sometimes we have just to leave the things on the rest of the things, just like environment and the behavior of the child as well, and so many things as well. Thank you so much, ma'am, for giving a valuable time to us, and we had shared a lot of things like positive parenting and behavior of the child. And I'm also very blessed that I had a chance to work under the leadership of Kajal ma'am, and I learned a lot during my tenure when I was working with ma'am. And today, even I can say, whatsoever, it's just the blessing of her. Like, oh my God, that is such a big thing you have said. See, we all learn from each other. And I just don't say it, I actually believe in this thing that even from the nursery child, we learn a lot. So while working with children, while working with, educationist teachers, everyone brings something different to the table, right? And then the table is full of variety, and we all learn from each other. So I'm so glad if you learned something from me, and I learned a lot many things from you professionally also. I just really liked the way you connected with all the children, and we are still connected. That's the beauty of being in this field of education, that we all have our separate personal goals to achieve, but at the same time we are once we work together, we always stay connected as educationists. So that's wonderful, and you have been a wonderful host of this podcast also. thank you And so much since once it is again. my first one, I really enjoyed being here. Thank you. Okay, also I would like to state here the very obvious thing that Gaurav is since doing such a wonderful task in these vlogs, since he's dealing with the important topics related to education. If you are a parent or to be a parent, please subscribe to his channel. It is going to be very helpful for you. Thank you so much.